شہدائے کربلا کی یاد میں ارم پورہ پٹن میں آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن کی جانب سے مجلس اعضاء منعقد ہوئی۔ مجلس میں آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری عابد حسین انصاری نے شرکت کی۔ عابد انصاری نے لوگوں کو امام حسین کی سیرت پر چلنے کی تلقین کی۔ ارم پورہ امام بارگاہ میں منعقدہ مجلس میں دن بھر ذاکرین نے مرثیہ خوانی کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور کربلا بھی یہی ہے، کربلا بھی یہی سکھاتی ہے کہ کس طرح انسانیت کو برقرار رکھیں۔ یہ مجلسیں ہوتی تھیں، ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہیں گی۔ جب تک حسین کا نام زندہ ہے یہ مجلسیں قائم رہیں گی۔ ہم حسین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں۔ CITU کے بینر تلے آج آنگن واڑی ہیلپرز اینڈ ورکرز ایسوسیشن سے منسلک خواتین نے سرکار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اننت ناگ کے عیدگاہ میں احتجاجی خواتین نے نعرے بازی کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہ سے محروم ہے، جبکہ تنخواہوں میں تفاوت دور کرنے کے لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ مظاہرین نے نوکریوں کو مستقل بنانے سے قبل یکساں کام کے لیے یکساں تنخواہ کو لاگو کرنے کی مانگ کی اور کہا کہ 20,000 روپے کی ماہانہ اجرت بھی فراہم کی جائے۔ ورکر کو 21,000 روپے، ہیلپر کو 17,000 روپے منیمم ویج لاگو کیے جائے۔ ہم آپ کی وساطت سے گورنر انتظامیہ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی انصاف دیجیے، کیونکہ اگر یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں، ہر سال بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا مناتے ہیں پروگرام، لیکن ہم بھی ان کی بیٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ بھی انصاف کیجیے، نہیں تو ہم آنے والے وقت میں ہم نیند حرام کریں گے گورنمنٹ۔ ضلع کپواڑہ میں ٹکر کپواڑہ کے لوگوں نے آج محکمہ PHE کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ محکمہ PHE کے ملازمین پچھلے کئی مہینوں سے ٹکر علاقے میں پانی کی ترسیل کو یقینی بنانے میں غیر سنجیدگی دکھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کئی گھنٹوں تک کپواڑہ چوکی بل شاہراہ پر احتجاج جاری رکھا۔ تم دپ آج ترا بہ پائپ پگہ ترا بہ پائپ ڈیزل تز کور نا کہین گیس آب امس ترس لٲنِتھ اَسہِ لۄکچہِ لٲنِتھ تِمو چھُ اوٚڑ اوٚڑ آب پکان اَجہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ 50 گھر 50 گھرن دِیِو تُہۍ اَجہِ چھُنہٕ آب بٲگرٲیِتھ اَتہِ کیٛاہ رَٹو أسۍ تہِ چھِنہٕ بُتھِ پَکٲنی پایپَن تھوٚپ چھا کیٛاہ چھا اَتھ نہ چھِ کانٛہہ چیک کران نہ چھِ کینٛہہ کران یِمن حظ گٔے 4 ؤری وَنان تۄہہِ دِمو أسۍ ٹینکی تۄہہِ دِمو أسۍ پایپہٕ سر نہ چھِ پایپہٕ دِوان نہ چھِ ٹینکی دِوان أسۍ چھِ پریشان اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ زن لوٚگ نار اَسہِ زن گوٚو وَر اَسہِ کَتہِ حظ بَنہِ اَسہِ کیٛاہ حظ بَنہِ اَسہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ضلع شوپیاں کے دور افتادہ علاقے کلیر میں مختلف علاقوں سے آئی ہوئی آشا ورکرز کے لیے ایک روزہ جانکاری کیمپ منعقد کیا گیا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اور جموں کشمیر ہیلتھ کیئر اسکیم کے متعلق ان لوگوں کو آگاہی فراہم کی گئی۔ کارڈ ہے اس کو سٹیمپ ہونی چاہیے TSO کی یا گھاٹ منشی کی، پھر آپ کو یہ کارڈ، یہ راشن کارڈ اور یہ آدھار کارڈ کسی کامن سروس سینٹر جو ہمارا نیئرسٹ کامن سروس سینٹر ہے آپ کا، وہاں پہ جانا ہے، ان کے پاس آپ کو انرولمنٹ پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ شوپیان کے لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی ٹیک دا بینیفٹ آف دس اسکیم۔ وی آل نو دیر آر تھاؤزنڈس آف پیشنٹس وچ آر ان نیڈ آف دس آیوشمان بھارت اینڈ گولڈن کارڈ۔ کائنڈلی ٹیک دا بینیفٹ آف۔ شوپیاں میں اسپورٹس کے لیے اورینٹیشن پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ فزیکل اور ریبر کھیل ٹیچروں کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ نئے کھیلوں کو متعارف کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ طلباء کو ٹیچرز بہتر انداز میں کھیل کی باریکیوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اسی دوران طالبات کے ایک گروپ کو ٹریکنگ پر روانہ کیا گیا۔ کچھ نئی گیمز آئی ہے، جیسے مارشل آرٹ میں کافی ڈفرینٹ سکلز ہیں، بیس بال ہے، کافی چھوٹی بڑی گیمز جو ہے جو ہمیں بچوں میں یہ کروانی ہے۔ اب ہمارے بچوں کو یہ تبھی ترجیح ملے گی، تبھی وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اس میں، جب ہمارے ٹیچرز اس میں ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ ہمارے ٹیچرز کو ہم خود پہلے یہاں ہم 6 دن کا یہ کورس لگا رہے ہیں اورینٹیشن، ہم پہلے ان کو ٹرین کریں گے، پھر یہ جا کر آگے اپنے اسکولوں میں۔ پولیس شہداء کو خراج پیش کرنے کے سلسلے کے طور پر مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس پریڈ کلچرل پروگرام مباحثے منعقد کر رہی ہے۔ پولیس شہداء کے اہل خانہ سے ربط بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے ساتھ اظہار یگانگت کیا جا سکے۔ SSP گاندربل نے 10 دنوں تک مختلف پروگراموں کے انعقاد کا شیڈول جاری کیا۔ مشہور جھیل مانسبل میں جشن مانسبل کے عنوان سے اسپورٹس فیسٹیول کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس دوران شکارا ریس، بیڈمنٹن،
चेस, वॉलीबॉल, स्नूकर और कैरम के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। खेलों में दिलचस्पी रखने वाले कई लोगों का जोश व खरोश देखने को मिला। बच्चे थे खासकर वो आए, पार्टिसिपेट किया। अब इसमें शिकारा रेस करवाई, उसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्नूकर है, बिलियर्ड का, साथ में ये बैडमिंटन एंड चेस और लाइक वाइज कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो आज के दिन में। इसी तरह 10 दिन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने एक शेड्यूल ड्रा किया, सोशल मीडिया में शेयर किया। लाइक एथलेटिक रेसेस हैं, देन कल्चरल इवेंट्स हैं, शाम गज़ल है, देन वी हैव साइकिल रेस ऑन 30th। तो अकॉर्डिंगली ये सभी बच्चों का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि बच्चे इन्वॉल्व रहें, यहाँ का यूथ इन्वॉल्व रहे और अच्छे काम। फौज की 2RR की जानिब से मालमो ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में वादी की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आज सेमीफाइनल खेला गया। धारमोना, बडगाम और कुंजर की टीमों के दरमियान ये मुकाबला खेला गया, जिसमें धारमोना की टीम फातेह रही। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मालमोआ और सोईबुक की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें मालमोआ की टीम ने जीत दर्ज की। खिलाड़ियों ने इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलने का, आगे जाने का। 2RR की तरफ से जो टूर्नामेंट हुआ है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि हम आगे जाके कहीं और खेल सके, नेशनल तक खेल सके, इंटरनेशनल तक खेल सके। वो 2RR हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म कर रहा है, मुकर्रर कर रहा है। तो आप खेलो, तो हम 2RR का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे टूर्नामेंट किया। ग्राउंड लेवल से बात करें तो सबसे पहले हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई प्लेयर अपना परफॉर्मेंस करके जाता है तो आगे जाके वो किसी और प्लेटफॉर्म में खेल सकता है। 2RR कैंप की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया था मालमो ग्राउंड में। तो हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो एक उम्दा प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं जो आर्मी ने हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद कुपवाड़ा ज़िले के सरहदी इलाके मिशेल में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मिशेल इलाका सरमा के दिनों में 6 महीने तक ज़िला सदर मुकाम कुपवाड़ा से कट कर रह जाता, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने इस इलाके का दौरा किया और लोगों के मसाइल जानने की कोशिश की। प्रॉब्लम है और डॉक्टर की प्रॉब्लम है सर, खासकर दूधी में बिल्कुल रोड कच्चा है सर। मेरा इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है, एक लेडी डॉक्टर होनी चाहिए और आज के आज यहाँ पे मेडिसिन यहाँ पे बराबर से पहले यहाँ पे होनी चाहिए। हमारे बच्चे 1 साल से तालीम से महरूम है। अगर यहाँ पर इंटरनेट हो, टावर हो तो हमारे साथ बहुत बड़ी इंसाफ होगी। हमारी रोड है ये, यहाँ बीकन को यहाँ PMGSYS डिपार्टमेंट को दिया जाए, क्योंकि R&B उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। रिंग वाला तक तार बिछाई गई, हमारा गांव अभी भी अधूरा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मस्जिद के बगल में हमसाया गाँव है पुशवारी, क्या पुशवारी वालों का हक नहीं है कि वो भी रोशनी देखे। लास्ट टाइम DC साहब ने इनॉग्रेशन किया था पावर के लिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई उसमें भी यही बात आई कि खाली मच्छल दूधी को ही मिला है, रेस्ट ऑफ द जो विलेजेस है उनको नहीं मिला है। ज़िला रामबन की पंचायत पन्नोद के गांव थलवा में महकमे देही तरक्की की जानिब से साल 2019-20 प्लान में शामिल मछली तालाब के लिए काम का कुछ हिस्सा करने के बाद अभी तक नामालूम वजूहात पर इसे बंद कर दिया गया। मछली तालाब बनाने के लिए ज़मींदार से ली गई ज़मीन के कुछ हिस्से की कटाई के साथ मटेरियल पहुंचाया गया है। ताम गुज़िश्ता 6 माह से काम में कोई पेशरफ न होने की वजह से मुकामी लोगों ने महकमे देही तरक्यात से काम को जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने ADC रामबन की नोटिस में यह मामला लाया तो उन्होंने काम को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। लगभग 50,000 के करीब पैसा निकला हुआ है, लेकिन इसका ये क्लेम है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है। एक तो ये है कि इसको कुछ नहीं मिला, दूसरा ये है कि काम छोड़ दिया गया है। पिछले 6 महीने से, साल से जो है ये काम पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। और पैसा कहाँ गया, किसकी जिम्मेदारी थी। यहाँ बाग था, बाग में बोटे सूखे, एक दिन आप देख सकते हैं बोटे सूखे हैं। बाद में काम छोड़ दिया, नहीं करता है नहीं कुछ। लेकिन आप दफ्तर में देखो, अगर मेरे नाम पर 10 रुपये भी होंगे ना तो मैं जिम्मेदार है। महीने हो गए, 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में टोटल जमा हुआ। उसके बाद बोल रहा है फलाने के अकाउंट में डाला है, फलाने के अकाउंट में डाला है। जनाब अगर लोगों के अकाउंट में डाल दे, जब मुझे नहीं मिलेगा उसका मुझे क्या फ़ायदा है। तो इसमें अभी आते ही मैंने अपने कंसर्न VLW को बुला के यहाँ पे बात की। ये काम अंडर प्रोसेस है, लेकिन करने वाला वहाँ पे इसमें इंटरेस्ट उसको बहुत कम है। हमने VLW को ये डायरेक्शन दी कि जिसकी ज़मीन है उसी को बोलो कि ये तुरंत काम लगाए। जो मटेरियल है वो सारा कुछ वहाँ पे पड़ा है, वो काम लगाए। जैसे ही वो काम ख़त्म करेगा हम उसको पेमेंट कर देंगे।
कल देर रात ज़िला पुंछ हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जम्मू पुंछ हाईवे पर कलाई इलाके में नामालूम अफराद ने पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। ताहम ग्रेनेड फटा नहीं और पुलिस एहलकार बाल बच गए। इस दौरान वहां से करामद ग्रेनेड बरामद कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ज़रई यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर JP शर्मा ने विज्ञान केंद्र कठुआ का दौरा किया। इन्होंने किसानों के लिए बनाई गई स्कीमों का जायजा लिया। VC ने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर हर्षदेव सिंह ने कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इन्होंने जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने की मांग को दोहराया। इन्होंने कहा कि हमेशा से जम्मू को नजरअंदाज किया जाता रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट भदरवा में भल्ला तहसील के हजारों मकीनों की मुश्किल दूर होने वाली है। भल्ला से शंगरू तक 13 किलोमीटर सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो चुका है। ये सड़क लगभग 2 दर्जन गांव को एक दूसरे से जोड़ती है। इससे ये इलाके की बरसों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े हुक्काम ने 15 नवंबर तक सड़क के तमाम काम पूरे करने का निशाना मुकर्रर किया है। बर्फबारी और बारिश के दिनों में भी लोग अब सड़क से सफर कर सकेंगे। शराब वादी से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों के लिए भदरवा में 5 रोज़ा ट्रैकिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डोडा जिले के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाली 47 लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर ट्रैकिंग में शामिल लड़कियों ने महकमे स्पोर्ट्स की इस पहल को खुशाइंद करार दिया। इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वो घर की चहारदीवारी में ही कैद होकर रह गई थी। राजौरी के तलबा को ट्रैकिंग पर रवाना किया गया। DC राजौरी नज़ीर शेख ने झंडी दिखाकर तलबा को टूर पर रवाना किया। DC ने कहा कि तलबा के लिए ट्रैकिंग काफ़ी सूदमंद साबित होगी। चारचिनार किश्तवाड़ में पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। कई तलबा ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। अच्छी पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। सांबा में पुलिस की जानिब से शहीदों की याद में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। SSP सांबा राजेश शर्मा ने कहा कि बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को रियासती सतह पर खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुलिस की जानिब से अंडर 19 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। DC और SSP पुंछ मेहमान खुसूसी रहे। इस महीने के इख्तिताम तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में जिले की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सब डिवीजन गंदोह में कैजुअल वर्कर्स ने UT इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मुजाहिरीन ने वाजिबुल अदा तनख्वाहें देने और मुलाजमत मुस्तकिल करने की मांग की। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में आधार कार्ड बनाने का खुसूसी कैंप लगाया गया। करीबी इलाकों के तलबा ने अपने सरपरस्तों के हमरा स्कूल पहुंचकर अपना नाम दर्ज करवाया। जिले में आधार कार्ड के 100% निशाने को हासिल करने के लिए खुसूसी कैंप मुनाकिद किया गया है। जिला रामबन में म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से कचरे और गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए माकूल इंतजाम न होने की वजह से कस्बे की गंदगी को शाहराह के किनारे ढेर लगाए जाने से आवाम सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों ने कचरे को किसी मुतबादिल जगह पहुंचाकर कस्बे को साफ शफाफ रखने की अपील की। त्योहारों के मौसम के पेश नज़र पुंछ के मुख्तलिफ बाजारों में महकमे फूड के अफसरों ने चेकिंग की। कवायद की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। खराब हो चुके सामान को तबाह किया गया। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।